Hello students, today we are going to read the chapter Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. Discovering Tut. This chapter describes the boy king Tut. He was the last heir of a powerful family that ruled Egypt for centuries. The lesson also describes how CT scan of Tut's mummy revealed interesting but startling facts about life. Let's read the chapter. He was just a teenager when he died. Narrator described that when the king Tut died, he was a teenager, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Last heir here, the person who will be the next king ऑफ ए पावरफुल फैमिली, वो एक बहुत पावरफुल फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी था. हु रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने सेंचुरीज से अनेक शताब्दियों से इजिप्ट पर शासन किया. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. हियर इवेंचुअली मीन्स फाइनली. उसे पूरी कवर कर दिया गया, सोने से पूरी तरीके से कवर कर दिया गया व्हेन ही वाज डाइड एंड इवेंचुअली फाइनली फॉरगॉटन, उसे भूल गए. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब से 1922 में उसके टॉम की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. स्पेकुलेटेड हियर गेस, इमेजिन करना, अनुमान लगाना. उन्होंने जब 1922 में उसके टॉम की डिस्कवरी हुई, तब मॉडर्न वर्ल्ड ने ये इमेजिन किया उसके साथ क्या हुआ होगा. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा मीन्स मोस्ट, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी थी? शायद उनका मर्डर किया गया था. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द लास्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और लगभग अब 80 ईयर्स में सबसे पहली बार उसके टॉम को बाहर निकाला गया. एंड टुट हैज़ अंडरगोन अ CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. और अब उसकी लाइफ से रिलेटेड और उसकी डेथ से रिलेटेड नए फैक्ट सामने आने थे. And provides precise data for an accurate forensic reconstructions of the boy's Farhan. Here, provides means gives, precise means exact data, facts and figures. Forensic, examining dead bodies to find out the cause of death. अब उस फरहा को मीन्स किंग टट के बारे में एग्जामिन, उसकी मौत कैसे हुई उसको पता लगाने के लिए और उसके बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, दोबारा से उसके को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक प्रिसाइज डाटा, एक एक्यूरेट डाटा CT स्कैन के द्वारा प्रोवाइड करवाना था. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. Here, angry means violent. Stirred up, grow, rise to. ऊपर की ओर उसको खड़ा कर देना. Ghostly, we know about like ghost. Dust devils, fearful devil-like shape. Ancient, very old. Cemetery, the place where dead bodies are buried. जब किंग टट को उसकी रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, एंड द रेस्टिंग प्लेस वॉज सिचुएटेड इन cemetery place, Egyptian, ancient Egyptian cemetery place, which is known as the Valley of the King. जिसे हम वैली ऑफ द किंग कहते हैं. जैसे ही किंग टट की बॉडी को उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, तभी तेज
वायलेंट अगर हम कहें, विंड लाइक अ घोस्ट, चलना स्टार्ट हो गई। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडिड अक्रॉस द डेजर्टेड स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे। डार्क बेलीड मीन्स डार्क एंड बल्किंग, मीन टू से गहरे काले बादल फैल गए। स्कडिड अक्रॉस, the clouds moved quickly across the sky. Veiling means to say to cover. Casket grey, grey colored box means full of stars. Dark bellied clouds had scudded across the deserted sky all day and now were veiling the stars in casket grey. When the king Tut body was taken out from its resting place, suddenly the violent wind started to blow and dark clouds covered the whole sky day and night. At night they covered all the cascades of grey means all the stars. चारों तरफ आंधी ही आंधी फैल गई और काले काले बादल छा गए। It was 6 p.m. on January 5th, 2005. अब आज day it was the time of January 5th, 2005 and the timings was 6 p.m. The world's most famous mummy, glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Glided means moved. Scanner, examiner machine, we will say. To probe means to examine. Lingering, that is लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसे काफ़ी लंबे टाइम से जो रह गया था। मिस्टीरियस सीक्रेट्स, वर्ल्ड की फर्स्ट मम्मी का सीटी स्कैन होना था पहली बार, ये एग्जामिन करने के लिए जो मिस्ट्रीज लिटिल यंग रूलर के बारे में अभी तक नहीं पता थे, हाउ ही डाइड एंड व्हेन डिड ही डाई, उन सभी मिस्टीरियस मेडिकल मिस्टीरियस को फाइंड आउट करने के लिए पहली बार सीटी स्कैन किया गया सिर से लेकर पैर तक। हु डाइड मोर देन 3,000 ईयर्स एगो, जो किंग टट अब से पहले 3,000 ईयर्स पहले मर गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू क्रैम्ड। पूरी दोपहर यूजुअल लाइन्स ऑफ टूरिस्ट की एक लंबी सी लाइन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो पूरे संसार से आए थे, हैड डिसेंडेड। हेयर डिसेंडेड मीन्स टू कम, क्रैम्ड नैरो। वो टूरिस्ट लगातार रॉक कट टॉम सन 26 फीट अंडरगोन टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। पूरी दोपहर जो टूरिस्ट संसार के दूसरे भागों से भी वहाँ पे आए थे, उस किंग टट को देखने के लिए जो एक टॉम के अंदर 26 फीट अंडरग्राउंड एक टॉम बनाया गया था जिसमें उस किंग टट को रखा गया था, वहाँ पे लगातार उसको देखने के लिए विजिट कर रहे थे। They want to pay their respects. They were there to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. They gazed means they were seeing, keen observing. वो बहुत ज़्यादा keen observer कर रहे थे। At the murals pictures पर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, जहाँ पर उसको दफनाया गया था उसके ग्रेव रूम में, ब्यूरियल चैम्बर मीन्स हियर ग्रेव रूम में जहाँ पर उसको दफनाया गया था उसकी दीवारों पर कुछ टूरिस्ट पिक्चर्स लगी हुई पिक्चर्स को देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और लगातार टट का जो चमकता हुआ चेहरा था विच वॉज कवर्ड विद गोल्ड, उसको देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो उसकी ममी के साइज का कोफिन था उसके लिड की सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर अट्रैक्टिव फीचर कहेंगे वो था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर,
कुछ विजिटर्स वहाँ पर विस्परिंग कर रहे थे, जो वहाँ पर गाइड बुक्स रखी गई थी उनको पढ़कर आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे उसके बारे में। देवर कन्वर्सिंग, सम वर स्टैंडिंग साइलेंटली, कुछ लोग वहाँ पे साइलेंटली खड़े थे। Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, शायद वो pondering होता है सोच विचार करना, means to think about that deeply, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से गहराई से सोचना। कुछ लोग बहुत गहराई से टट की अनटाइमली डेथ जो हुई थी उसकी टीनेजर एज में उस टाइम के बारे में सोच रहे थे। और वंडरिंग विद ए सीवियर इफ द फराह कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू, और कुछ लोग इस बारे में सोच रहे थे कि कहीं फराह की जो डेथ हुई थी और उसका जो मिसफॉर्चून है उसका एक कर्ज था, एक अभिशाप था, क्या वो वास्तव में सच था। और ये कहा जाता है कि जो उसको डिस्टर्ब करता है उसके ऊपर वो कर्ज, वो श्राप आ जाता है, इसीलिए लोग उसके बारे में सोच सोच कर देवर थ्रेटिंग, वो डर रहे थे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वट Carter did in 1920, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Zahi Hawass, who was the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, कहते हैं मम्मी को बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ा गया। What did in the 1920 बाय कार्टर, कार्टर ने जो 1920 में उन्होंने उसकी टट की टॉम को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने किंग टट की मम्मी को बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ दिया, ऐसा जही हवास का मानना था। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वो पहली बार किंग टट की मम्मी को देखने के लिए नीचे की ओर झुकते हैं। कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इट वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, कार्टर हावर्ड कार्टर वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, futile here useless, जिन्होंने 1922 में एक लंबे टाइम पीरियड से सर्च आउट करने के बाद किंग टट की टॉम को डिस्कवर किया था। इट्स कंटेंट्स दाउ हेस्टिली ransacked in antiquity, here contents means things, hastily in a hurry, ransacked means looted। यहाँ पे ये कहा जाता है कि भी इसके जो अंदर की जो थिंग्स रखी गई थी उन्हें माना कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जल्दबाजी में पुराने टाइम में लूट लिया गया था, बट सरप्राइजिंगली दे वर कंप्लीट। लेकिन अब एक आश्चर्य था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी वो टट की बॉडी के साथ जो चीज़ें रखी गई थी उन्हें बहुत पुराने टाइम में पहले से ही लूट लिया गया था, परंतु अब देख कर लगता है कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बीन बिकम पार्ट ऑफ द फराज लीजेंड, हियर लीजेंड्स मीन्स स्टोरी दैट इज हैंडेड फ्रॉम जनरेशंस, जो काफ़ी लंबे टाइम से जनरेशंस के टाइम से चलती हैं। They remain the richest royal collection ever found, आज तक का सबसे ज़्यादा richest royal collection अगर हम माने, that was found from King Tut mummy and now it has become the part of Pharaoh's legend। और अब उसकी जो ओल्ड स्टोरीज है जिनके बारे में हम किंग टट के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अब उन्हीं का ये एक पार्ट बन गया। एंड stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrections। Stunning, surprisingly देखिए, everything was covered by gold, हर चीज़ को गोल्ड से कवर किया गया था। their eternal brilliance meant, इतना सारा eternal मतलब जो कभी मरता नहीं है, brilliance जो शाइनिंग चीज़ है, गारंटी होती है, गिव एश्योरेंस, रिसरेक्शन, रीबर्थ। ऐसा माना जाता है कि शाइनिंग थिंग्स जो उसकी डेड बॉडी के साथ रखी गई थी वो उसके रिसरेक्शन मीन्स रीबर्थ में भी उस गारंटी देती थी कि भी वो उसके मरने के बाद वो चीज़ें उसे मिलेंगी। एंड इट के कॉज्ड अ सनसनी एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और ये सनसनी फैला दी जब व्हेन ही वाज डिस्कवर्ड,
एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और यही गोल्ड आज तक सभी का अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। बट टट की बॉडी को अभी भी डेली यूज की थिंग्स के साथ दफनाया गया था। वट ही वांट इन आफ्टर लाइफ, जो उसके मृत्यु के बाद उसे चाहिए थी। बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइन अंडरगाउंड्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, इन सभी चीज़ों के साथ उस किंग टट की बॉडी को दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द funeral treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Continuously, after some months, when Carter has recorded the France funeral treasure, now he started to investigate his three nested coffin. Here, nested means boxes in which dead bodies are kept. Nested means fitted inside each others. यहाँ पर किंग टट की बॉडी को 3 नेस्टेड कोफिन्स के अंदर दफनाया हुआ था। अब कार्टर ने स्टार्ट कर दिया उसी को डिस्कवर करना, उसी के बारे में रिकॉर्ड बनाना। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्रोड अराउंड adorned with garland of willows and olive leaves. जैसे ही when he opened the first coffin, he found a shroud adorned with garland of willows and olive leaves. उसके coffin में willow and olive leaves की garland को देखता है। Wild celery, lotus petals and cornflower. The faded evidence of a burial in March or April. Or now these have been faded, so it has been considered that he was buried in March or April month. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. When he investigated all the 3 nested coffins, now he reached to the mummy and he faced problems. The ritual regions had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. Here, रिचुअल मीन्स यूज एट द सेरेमनी पॉइंट, रीजन्स होता है स्टिकी सब्सटेंशन होता है, हार्डन बिकेम हार्ड, सीमेंटिंग मीन्स हार्ड लाइक सीमेंट। When he started to investigate his mummy, he found that ritual regions had hardened. जो फ्यूनरल प्रोसेसन के ड्यूरिंग्स रेजिन्स होते हैं ना, जो एक लिक्विड टाइप में एक सब्सटेंस होता है, उसके साथ उसकी बॉडी को चिपकाया जाता है। जब उसकी बॉडी को चिपकाया गया तो वो रिचुअल रीजन्स उस टाइम पे सीमेंट की तरह हार्ड हो गया और उसकी टट की जो बॉटम ऑफ इस गोल्ड कोफिन और जो सॉलिड गोल्ड कोफिन था उसकी बॉटम से वो चिपक गया सीमेंट की तरह। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। बाहर से जितना भी वो फोर्स लगा सकते थे उन्होंने फोर्स लगाया, बट उसको हटाने के लिए बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कार्टर रोट लेटर बट वॉज टू बी डन। कार्टर दोबारा अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं अब हमें क्या करना था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हेमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। उन्होंने कहा दैट दे कुड हेल्प द सन बिकॉज द सन रेज दैट वुड वर्क लाइक ए हैमर एंड इट कुड बी रिमूव्ड इजीली। So he decided to keep it in the far south in Egypt. And Carter tried to use it to loosen the regions. और उस regions को अलग करने के लिए, लूज करने के लिए कार्टर ने उसकी बॉडी को सन रेज के में रख दिया। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. Now he set the mummy in the blazing sunshine at 140 degree Fahrenheit. To think about that, now he could be removed easily. Nothing buzzed, but no improvement was there. कुछ फर्क नहीं पड़ा. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be sizzled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। वो अपना साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट करते हुए कहते हैं द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी सिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। इससे पहले कि किंग टट की बॉडी को उससे रिमूव करना पॉसिबल होता, उन्होंने उसी पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए
कंसोलिडेट मटेरियल, जिसके जो उस रिचुअल रीजन्स के साथ उस कंसोलिडेटेड मटेरियल मीन्स जो डिपॉजिट मटेरियल था, जो रिचुअल्स जिसके रीजन्स के साथ उसको दफनाया गया था, जो इतनी बुरी तरीके से चिपका हुआ था, जो रिमूव करना ही मुश्किल हो रहा था, उसको निकालने के लिए उसके लिम्स और जो ट्रंक जो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है उससे उसको अलग करने के लिए दे यूज सीजल. सीजल अवे रेफर्स मीन्स टू सेपरेट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सीजल. सीजल का हेल्प, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में छैनी कहते हैं, उसका यूज़ करके उसने उसकी बॉडी पार्ट्स को उस कंसोलिडेट मटेरियल से अलग किया. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. वो अपने डिफेंस में कहता है कि अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी. इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented. Here circumvented means cheated the guards and ripped it apart to remove the gold. वो अपने डिफेंस में कहते हैं कि भाई अगर वो मम्मी को उस सीजल का यूज़ करके अलग नहीं करते तो जो थीव्स हैं वो गार्ड्स को धोखा देकर जो किंग टट की बॉडी में जो सोना रखा हुआ था उसको वो रिमूव करके वहाँ से चुरा कर भाग गए होते. इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलस वेल्थी. वो बहुत ज़्यादा धनवान थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे. एंड दे थॉट और होप, वे सोचते थे और उन्हें एक होप भी था दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. अगर वो मर जाएंगे और मरने के बाद उनका सारा गोल्ड उनके साथ अगर दबा दिया जाएगा तो वो मरने के बाद उसमें उसकी हेल्प करेगा और उस रिचेस को अपने साथ वो ले जाएंगे. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीसियस collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets and ceremonial apron, sandals, seats for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. Here the narrator says that now second part of the chapter discovering Tut, the saga continues. Let's read. In his defense, Carter really had little choice. Carter अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि उनके पास little choice थी. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Circumvented, cheated. वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं अगर उन्होंने मम्मी को ना काटा होता, थीव्स गोल्ड को उसके बॉडी से रिमूव करके गार्ड्स को चीट करके गोल्ड को वहाँ से ले जाते. इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्थी. टट्स के टाइम में रॉयल्स फैमिली फैबुलस वेल्थीएस्ट फैमिली में से गिनी जाती थी. दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट हाउ मच a royal family can be so wealthiest. And they thought or hoped they could take their riches with them. And they hoped or they were thinking if they would be covered with gold after death, then all the riches they could take with them. उन्हें वो ऐसा सोचते थे, उनको एक होप भी था अगर वो मरने के बाद गोल्ड उनके साथ और डेली यूज़ की चीज़ें उनके साथ अगर बरीड कर दी जाती हैं तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट लाइफ में उनके काम आएंगी. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग
goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. सरप्राइजिंगली अगर देखें तो उनकी इस जर्नी के ड्यूरिंग्स किंग टट वॉज लेविस्ड विद किंग टट को कवर कर दिया गया था विद ग्लिटरिंग गुड्स के साथ, प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमलेट्स, ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers, toes, inner coffin and marks. All these things were made of gold and these things were buried with him. To separate tuts from his adornments. Adornments means the things which were used to decorate. Carter's man removed the mummy's head and several nearly every major joint. किंग टट की बॉडी को उसके ऑर्नामेंट से दूर करने के लिए कार्टर के वर्कर्स ने मम्मी के सिर को और जो मेजर पॉइंट थे उनकी बॉडी के उनको रिमूव कर दिया. वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने पूरा गोल्ड उतार लिया और अपने वर्क को फिनिश आउट कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विद पैडिंग. अब उन्होंने किंग की जो बॉडी थी उसको एक वुडन बॉक्स में शेयर की लैंड उस पर रखी, सम पैडिंग रखा और उसके ऊपर उसकी बॉडी को रीअसेंबल कर दिया. टू कंसील द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट. उसकी बॉडी के साथ कुछ डैमेज ना हुआ होगा कोई बॉडी पार्ट, उसको कंसील करने के लिए, उसको छिपाने के लिए उन्होंने उसको वुडन बॉक्स में रेत की लेयर के ऊपर कुछ पैडिंग के साथ रख दिया और आज दोबारा से वहीं रख दिया जहाँ पर किंग टट अब रेस्ट करते हैं. आर्कोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. Archaeology has changed substantially. Substantially होते हैं greatly. Intervening means in between decades. We know a period of 10 years, focusing to concentrate on fascinating, attractive, intriguing, mysterious and mysteries मीन्स सीक्रेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने आने वाले अब इन डिकेड्स में ट्रेजर पर कम फोकस करना स्टार्ट कर दिया. नाउ दे वर फोकसिंग ऑन द फैसिनेटिंग, मोर अट्रैक्टिव जो डिटेल्स थी उसकी लाइफ से रिलेटेड और उसकी डेथ किन मिस्टीरियस सीक्रेट्स में हुई, किस वजह से हुई, इन सभी को फाइंड आउट करने के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया. It also uses more sophisticated tools. Sophisticated means most complex and modern tools. इसके लिए उन्होंने मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy. 1968 में when the Carter discovered the King Tut's mummy 1922, after 40 years, an anatomy professor also x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the regions that cake his chest, his breast bones and front ribs are missing. एनाटॉमी प्रोफेसर ने जब मम्मी को एक्सरे किया तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैक्ट सबके सामने रखा. रीजन्स के साथ जब उसके बॉडी पार्ट्स को अलग किया गया था, उसके ड्यूरिंग्स उसकी चेस्ट और जो ब्रेस्ट की बोन्स है और फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional visual body. Here, computed means computerized. Tomography, techniques of body that examine through X-rays, slices, pieces. Three-dimensional means here having length, breadth and height, having volume also, visually in real sense. Now the diagnostic started his body to examine with CT scan, in which hundreds of X-rays are assembled. They are put together like the slices of bread. अब डायग्नोस्टिक ने किंग टट की बॉडी को CT स्कैन किया जिसमें
100 ऑफ एक्सरेज एक साथ लगाए जाते हैं और पूरी बॉडी का 3 डायमेंशियल वे में एग्जामिन किया जाता है. वट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे. उन्होंने कहा एक एक्सरे की बजाय सीटी स्कैन पूरी बॉडी को रिवील कर सकता है, उसके पूरी बॉडी का एग्जामिन कर सकता है. एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. और सीटी स्कैन की हेल्प से ही उसकी लाइफ से रिलेटेड जो बिग क्वेश्चंस थे, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, इन सब को फाइंड आउट कर सकते थे. किंग टट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट even by royal standards. If we talk about the royal standards, King Tut's demise means death was a big event. He was the last of his family line. अपनी family line का last heir था, उत्तराधिकारी था. And his funeral was the death rattle of a dynasty. And he was the last heir of his family line and his funeral was the death rattle of a dynasty. वो अपनी family line का last उत्तराधिकारी था और उसके funeral के साथ dynasty means उसकी family line, उसके परिवार का, उसकी family line का अंत हो गया. But the particulars of his passing away and its aftermath are clear. लेकिन उसके मरने और मरने के बाद के जितने भी facts हैं, जो हुआ वो अभी तक unclear हैं. Amenhotep III, Tut's father और grandfather, was a powerful pharaoh. वो बहुत ज़्यादा powerful king हुए हैं. Who ruled for almost 4 decades. जिन्होंने 4 decades तक rule over किया over the Egypt at the height of the 18th dynasty golden age. 18th century के अंदर उन Amenhotep III, उसके father और forefathers ने कई दशकों तक rule over किया और that century is considered as the golden age. His son Amenhotep IV succeeded him, उसको आगे बढ़ाया and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. And in ancient history में उसने new history create करना start कर दिया. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten. न्यू फराह जो बने, अब उन्होंने प्रमोट में स्टार्ट कर दिया टू वर्शिप द गॉड एटन विच इज द सन, मीन्स ही स्टार्टेड टू वर्शिप द सन एंड ही आल्सो चेंज्ड हिज नेम टू अखनएटन मीन्स द सर्वेंट ऑफ द एटन एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखनएटन नाउ नोन एज अम्मारना. अब उन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल को भी चेंज कर दिया. पहले थीव्स हुआ करती थी, अब उन्होंने नई सिटी को कैपिटल बना दिया अखनएटन, और जो आज अम्बारना के नाम से जानी जाती है. ही फर्दर शोक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन. अब उन्होंने एक और शोकिंग स्टार्टअप किया. अब उन्होंने अमुन गॉड विच वॉज कंसिडर्ड हिज रिलीजियस गॉड एज पर द टाइम इज कंसिडर्ड, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज मेज, उसकी मेजेस को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया. एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स को बंद कर दिया. इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम. वास्तव में एक हॉरिफिक टाइम रहा ये, सैड रे जॉनसन का मानना था, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. अब उन्होंने कहा उनकी फैमिली जो कंटिन्यूसली मैनी सेंचुरीज से रूल ओवर करती जा रही थी इजिप्ट पर, अब उनका एंड हो गया और अखनएटन अब थोड़ा सा वैकी मीन्स हेयर ओड स्ट्रेंज पागल हो गया. आफ्टर अखनएटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूल्ड named Samen Khakre appeared briefly and exited with hardly a trace. अखनएटन की डेथ के बाद समनखरे एक मिस्टीरियस तरीके से एक किंग आया और उसका कोई भी निशान नहीं रहा. एंड ही एग्जिटेड मीन्स डिसअपियर हो गया. एंड देन ए वेरी यंग टुटनखामेन टुक द थ्रोन किंग. और अब किंगडम को किंग टट ने संभाला.
एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, किंग टट के नाम से जो आज जाने जाते हैं, द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टुटनखामुन। अब उन्होंने अपना नाम टुटनखामुन रख लिया, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन देवता की लिविंग इमेज, एंड ओवरशा रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, और ओल्ड वेज थे जो रिलीजियस उनका था अमुन, दैट दे यूज टू वर्शिप द गॉड अमुन, वो सारे चीज़ों को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। ही रिस्ट फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने नियर अबाउट 9 years तक रूल ओवर किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अनटाइमली मीन्स, और तब अनटाइमली उनकी डेथ मिस्टीरियस तरीके से हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Regardless means without caring. उसकी फेम और उसके फेट, उसके लक भाग्य से के अनुमान लगाए गए, उनकी परवाह किए बगैर टट इज कंसिडर्ड एज द ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट की बहुत ममियों में से एक वेल्थिएस्ट मानी जाती हैं। हाउ मैनी, अब तक की कितनी ममीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया है, नो वन नोज। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री लेट 2003, जो 2003 के लास्ट में स्टार्ट हुआ था, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अभी तक उन्होंने 600 ममीज़ को डिस्कवर किया है, एंड इज स्टिल कंटिन्यू एंड द काउंटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज़ विद ए पोर्टेबल सीटी स्कैन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सेमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो था किंग टट की मम्मी को सीटी मशीन के साथ स्कैन करना, जो डोनेट की गई थी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, जो उसके मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। अब किंग टट पहली मम्मी थी जिसको सीटी स्कैन किया जाने वाला था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, ताकि उनकी लाइफ और डेथ दोनों को पता लगाया जाए और उनके कंट्री मैन को और उसके देशवासियों को उसके सही लाइफ से रिलेटेड सभी फैक्ट्स के बारे में पता चले। अ सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, सीटी स्कैन ममी हेड से लेकर टो तक सीटी स्कैन करती है, पूरी बॉडी को स्कैन करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज इन क्रिस क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के अंदर 1700 डिजिटल एक्सरेज लगे होते हैं। टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 millimeters slices to register its intricate structures, takes an airy detail in the resulting image. King Tut's head was scanned. किंग टट के हेड को स्कैन किया गया 0.62 millimeters की स्लाइसिस में, टुकड़ों में, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, उनका जो इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर था उसको सही तरीके से पता लगाने के लिए 0.62 मिलीमीटर्स के टुकड़ों में उसका स्कैन किया गया। टेक्स ऑन इरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, एज ए रिजल्ट इमेज उसकी इरे स्ट्रेंज डिटेल सामने आई। विद टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, पूरी बॉडी का रिकॉर्ड किया गया। A team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial screen protected for so long. किंग टट की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड कर लिया गया। एक स्पेशलिस्ट की टीम इसमें लगी हुई थी, रेडियोलॉजी हैं, फोरेंसिक्स हैं, एनाटॉमी हैं। अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया टू प्रोब, टू एग्जामिन करने के लिए सीक्रेट्स के जो विंग्ड गोडेस है वो इतने लंबे टाइम से उन्होंने किंग टट की मम्मी को सेफ रखा। इस सब को से रिलेटेड सीक्रेट्स को पता लगाने के लिए उन्होंने ये सब किया। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। स्कैन की वाली रात को वर्कमैन ने किंग टट की मम्मी को उसके बॉक्स में से निकाला। लाइव Paul bearers, they climbed a rim. Paul bears, the persons who carry coffins. उन्होंने वो एक रैंप पे चढ़ गए उसकी बॉडी को लेकर, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग एंड आउटसाइड, और तभी
अब वो रैंप पे चढ़े और एक सैंड आउट जो बाहर की तरफ जो रेतीला मैदान था जिससे तेज़ हवाएं चल रही थी और उसमें मूव्स आउट कर रही थी, घुमाव बन रहे थे, वहाँ पे वो उसको लेकर बाहर आई उसकी बॉडी को। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू ए ट्रेलर, तब वो लिफ्ट की हेल्प से एक ट्रेलर तक गए एंड दैट हेल्प द स्कैनर, जहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था वहाँ पे गए। 20 मिनट्स लेटर टू मैन आर्म्स मीन कम आउटसाइड, 20 मिनट्स के बाद 2 वर्कमैन बाहर आए। स्प्रिंटिंग फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास में जो ऑफिस था वहाँ पर भाग कर गए एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस, और एक वाइट प्लास्टिक फेंस के साथ वापस आए। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट, $1,000,000 स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सैंडी ने कूलर फैन, बिकॉज आउटसाइड जो डस्टी विंड थी वो चली हुई थी जिसकी वजह से कूलर फैन में रेत घुस गया और उसने काम करना बंद कर दिया। कर्स ऑफ द फरा, जो डे गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने नर्वस होते हुए कहा, दिस इज द कर्स ऑफ फरा। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल enough to finish the procedure. Eventually means as a result, substitute fans ने काम किया और पूरे प्रोसीजर को फिनिश किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, पूरा चेक करने के बाद ये हुआ कि भी कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ है। द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस ने किंग टट की मम्मी को वर्कमैन को दोबारा हैंड ओवर कर दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसके टॉम को वापस ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Pharaoh again rest in peace. अब उसे नियर अबाउट 3 hours हो गए थे उसको कॉफिन से बाहर निकाले हुए। फराह को दोबारा से शांति से उसके रेस्टिंग प्लेस पर रख दिया। Where the funeral priest had laid him so long, जहाँ पर फ्यूनरल प्रोसेसन के ड्यूरिंग प्रीस्ट ने बाय द प्रेइंग द गॉड उसको वहाँ पे दफनाया था, उसको रखा था, बरीड किया गया था, वहीं पर उसे दोबारा से रख दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. But back in the trailer में वापस आने के बाद एक टेक्नीशियंस ने किंग टट की सरप्राइज कर देने वाली कुछ पिक्चर्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव आउट किया, उनको दिखाया। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिकल्स, ग्रे हेड, the head having grey hair means scattering means lying here and there, pickles teeny areas of light on the computer and the technician spun and titled it in every direction. तभी एक ग्रे हेड वाली शेप सामने आई, उसने स्कैटरिंग और उसकी उस इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पर लाकर छोड़ दिया। टेक्नीशियंस ने उसे हर डायरेक्शन में घुमा कर देखा, उसको पलट कर देखा। नेक वर्बिटियर अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमिक क्लास, उसकी नेक वाली जो बोन्स थी वो क्लियरिटी में दिखाई दी जैसे कि एनाटॉमिक क्लास में हम बायो की क्लास में देख लेते हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी इमेजेस में एक हैंड को दिखाया गया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांसेक्शंस ऑफ द स्कल। जही आवाज स्माइल्ड विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, जही आवाज मुस्कुराते हुए कहते हैं और काफ़ी रिलीफ भी उन्होंने महसूस किया ये कहते हुए कि भी कुछ भी सीरियसली मम्मी के साथ गलत नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, पूरा प्रोसीजर के ड्यूरिंग लास्ट नाइट भी वो नहीं सो पाया था। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सो पाया था। ही सैड आई वॉज सो वरीड, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेकर किंग जही हवास काफ़ी परेशान थे। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, बट अब वो कहते हैं अब उन्हें जाना चाहिए और सोना चाहिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, कुछ टाइम के बाद हमने ट्रेलर से हम निकले। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, ट्रेलर तक और सैंडी ग्राउंड तक मेटल्स की स्टेयर्स लगी हुई थी, वहाँ से नीचे उतरे। द विंड हैड स्टॉप, विंड रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, रात ठंडी थी और हवा रुकने की वजह से चारों तरफ एटमॉस्फेयर शांत था। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मौत के बाद सारी चीज़ें पीसफुल हो जाती वैसे ही। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट स्टॉर्म स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन
that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Here departed means dead. Entrance, way for entering. Orion, a constellation. And constellation means group of stars. Osiris, the god of life, means an Egyptian god. नरेटर कहता है कि इन डिपार्टेड सोल्स की वैली के अंदर विंटर सीजन में हवा ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, वैसे ही किंग तट के एंट्रेंस के बाहर, मीन जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट स्टॉर्म के बाहर, एंट्रेंस के बिल्कुल बाहर स्टूड ओरियन. ये माना जाता है कि भी ओरियन मीन्स एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, वो वहाँ पे दिखाई देता है आपको. द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्ट्स न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस. वहाँ के इजिप्शियंस लोगों का मानना है कि वो जो गॉड ओसिरिस है, मृत्यु का देवता जिसको कहा जाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्रुप ऑफ स्टार्स, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. आज भी वो किंग बॉय पर नज़र रखे हुए हैं. द narrator says that when the all images were clear and there was no doubt that something was missing at that time, because his head and bones of the neck appeared quite clearly. Other images also showed hand and several views of ribs, skulls also. Everything went well. When they came down, the wind had stopped just above Touchstone. There stood a cluster of stars, which is known as Orion, and it was considered that it always watched over the boy king. This is the end of the chapter. Hope so you will understand it.